Hello and welcome everyone to the post market analysis and market view session for tomorrow by MentorBox. I hope you all have a profitable day today. So my name is Nikhil Doshi. I am a trader and mentor at MentorBox by StocksBox. Over the past 12 years, I have been trading stocks, futures and options using technical analysis. So without further ado, let's start today's video. So Nifty is closed down by 13 point plus at 17,662 and Sensex is closed by 49 point plus at 59,549. Bank Nifty went up today by 267 point plus at 40,655. So positive day, another positive day today. Yesterday market got reversed as we discussed in the previous sessions. Market is retracing around 61.8% fib level. If you can just check over here, this is the daily chart of the Nifty. So market is retracing back from the 61.8% fib level. And it has given you a higher high close. Kal ka close kya tha? The yesterday's close was 17,648 and today's closing is 17,662. Okay, so close was 648 and today's closing is 662. So higher high closing today on the Nifty और नीचे से पुल बैक आ रहा है, बाइंग आ रही है. यू कैन सी ओवर हियर जो मार्केट आज सुबह गिरा था ओपनिंग के बाद, जो गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट वेंट डाउन टुडे. ओके, बड़ा सा फॉल आया फ्रॉम दैट लेवल आफ्टर इट गॉट रिट्रेसिंग ऑन द इंट्राडे. अगर मैं यहाँ पे 60 मिनट का चार्ट चेक करता हूं, सो इफ यू कैन जस्ट चेक हियर कि मार्केट यहाँ पे रिट्रेस हुआ 61% पे अराउंड हियर ऑन द निफ्टी और वो 61% से मार्केट धीरे धीरे ऊपर आया एंड एट द एंड इट क्लोजेस ऑन द सेम वेयर इट इज ओपन. नॉर्मली ओपन कहां हुआ था आज मार्केट? द मार्केट ओपन वाज अराउंड 17,735 एंड क्लोजिंग इज गिवन अराउंड 17,682. सो अराउंड जो ओपनिंग था ओपनिंग से थोड़ा नीचे आया बट it is on a higher high close. Now what to expect tomorrow? So tomorrow is the important day. Budget session tomorrow at around 11 o'clock. Budget speech will start. So tomorrow is a big event in the market. So market में budget तो है ही. Other than that you have a economic survey, auto के sales number है. Then in the evening Federal का reverse का first rate decision of the year. Federal का rate interest rate का decision आएगा in the evening. Over here, so Federal reverse first rate discussion in the decision in the evening it will become. So big volatile day expected tomorrow. So what to expect tomorrow in budget? So major budget expectation is like this, which a normal human being can understand. So wish list and expectation from the corporate. Okay, India is growing at 7% year on year right now. So on the budget 23-24 outline measure to support India's ambition in becoming US 5 trillion economy. We need to make it over here. So this is the major corporate expectation. So we are expecting the budget in and around to make the India as a $5 trillion economy in the world. So startup companies are seeks for simplifying tax regime, reduction in MAT, shows TOI Deloitte survey. This is the survey by Deloitte. Okay. Then the education sector is expecting the top spot in the year union budget. They are expecting कि education पे ज्यादा भार आए और education के लिए कुछ recommendation आए या education के लिए budget में कुछ अच्छा आए. Then infra sector always infra के लिए budget अच्छा आता है. So roads, railway, drinking water, urban and rural area में infra development. This is the major expectation from the budget. Okay. Then for the gold industries अगर देखते हैं तो gold industries is expecting कि import duty घटाई जाए. जो last time 7.5% से it was increased to 12.5%. Okay, वो घटाई जाए because due to that smuggling बहुत बढ़ गई है overall. On an average जो import export में जो smuggling होती है, तो smuggling लोग cash transaction ज्यादा करने लगे due to rise in import duty. So you can see over here, this is the data. Smuggling could increase by 33% to touch 160 tons in 2020 compared to the pre-2023 compared to the pre-COVID period due to
increase in import duty in gold from to 12.5% from 7.5%. So gold duty बढ़ाई, उस हिसाब से स्मगलिंग बढ़ गई है, तो उस हिसाब से लाइक गोल्ड इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टिंग कि ये थोड़ी कम करे, गोल्ड की ड्यूटी कम हो तो स्मगलिंग भी थोड़ी कम हो जाएगी फॉर दैट रीजन. Then on a normal middle class, they are expecting government must enhance the old regime tax slab. जो अभी दो टैक्स स्लैब है, न्यू रेजिम एंड ओल्ड रेजिम, तो वापस बैक टू ओल्ड रेजिम में आ जाए एंड एटीसी में लिमिट बढ़ के 2 लाख हो जाए या 2.5 लाख हो जाए. एंड हाइक इन स्टैंडर्ड डिडक्शन के इधर वो नहीं हो सके तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो अभी 50,000 है वो 1 लाख हो जाए. एंड इधर सिंस द मेडिकल लाइक प्रीमियम आर इंक्रीजिंग, मेडिकल प्रीमियम इंक्रीज हो रहा है, सो एटीडी की लिमिट भी बढ़ाई जाए. और इवन मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी आर लाइक एक्सपेक्टिंग कि मेडिकल में लाइक जो जीएसटी है 18%, इट शुड रिड्यूस टू 5%, सो इट लाइक प्रीमियम थोड़ा कम हो सके फॉर दैट रीजन. So this is the major expectation from the budget we are expecting tomorrow. Now what to do tomorrow? Budget में क्या करना चाहिए? So major strategy क्या होनी चाहिए? So market होगा volatile. So overall intraday के लिए सुबह जब market खुलेगा, since it is closing on a higher high side, as I discussed in this video, कि daily chart पे हमने देखा कि market higher high पे closing हुआ है. So I'm expecting positive scenario in the morning. Plus if we just check the bank nifty chart, so bank nifty ने तो यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल क्लोज हुआ है. अगर मैं निफ्टी में यहाँ चेक करता हूं, इफ यू कैन जस्ट चेक व्हाई इट इज 61%, एक रीजन तो है ही ऊपर जाने का. अगर दूसरा रीजन देखता हूं तो यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूं, तो ट्रेंड लाइन के एग्जैक्ट सपोर्ट में है निफ्टी, वो सपोर्ट से मार्केट वेंट अप. So I'm expecting a bounce. अगर बजट में कुछ ऊपर नीचे स्पिच आया तो ही अगर I'm expecting कि बजट नीचे आएगा, but overall on a intraday basis I'm expecting a long opportunity tomorrow. Normal before the budget आपको जो मूव मिलेगा 30-40 पॉइंट का गेन मिलेगा निफ्टी में, that you can capture during the morning session during 9:15 to 9:30 के 9:30 को जो हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं. तो फर्स्ट कैंडल अगर पॉजिटिव बनती है तो आई विल इंटरेस्टेड फॉर द लॉन्ग विद द 30-40 पॉइंट टारगेट एंड मैक्सिमम बाय 11 यू नीड टू स्क्वायर ऑफ योर पोजीशन, बिकॉज बजट की ओवरऑल सिनारियो वी नीड टू चेक. और बजट है तो मार्केट वॉलेटाइल होता है. हिस्ट्री उठा के देख लोगे तो बजट में जनरली 300 to 400 पॉइंट निफ्टी में मूव आता है एंड अबाउट 700 to 800 पॉइंट बैंक निफ्टी में मूव आता है बिकॉज ऑफ द वॉलेटिलिटी एंड एक्सपेक्टेशन. Overall premiums are increased due to India VIX. अगर India VIX का मैं अगर चार्ट देखता हूं, so India VIX is right now at 16.87. जो कल 19 हो गया था volatility, it has been reduced to 16.87. So volatility धीरे धीरे reduce हो रही है. So options writer के लिए it is the best time कि volatility और जो increase हुई है उस हिसाब से premium increase हो गया है. So they can look for the option strategy by writing the options and creating an option strategy like straddle, triangle. They can create the strategy and enter in the market tomorrow. So what you can do tomorrow, let's understand. So I have identified 3 strategies for you. Okay, so this is the strategy which you can use. Either you can look for the options buyer. If you're an options buyer, आपके पास capital बहुत ज्यादा नहीं है, if you want to trade in the options tomorrow, so you have a strategy called buy straddle. बाइक स्ट्रैडल करना है, मतलब क्या करना है, यू नीड टू सी एट अराउंड 11:15. जैसे ही बजट स्पीच चालू होगी 11 बजे, 11:15 को आपको मार्केट देखना है कि कहां है. से फॉर एग्जांपल मार्केट समझो 17,700 पे है या 17,715 के समथिंग है, तो यू नीड टू टेक एटीएम कॉल एंड एटीएम पुट. ओके, जो भी एटीएम कॉल होगा, 17,715 चल रहा है तो 17,700 इज योर एटीएम कॉल. तो 17,700 का एटीएम कॉल और एटीएम पुट आपको खरीद लेना है. बट इसमें मेजर चीज आएगी कि बजट में जैसे ही अनाउंसमेंट आएगा और वॉलेटिलिटी आएगी, आपको इमीडिएटली एग्जिट करना है. जैसे ही प्रॉफिट दिखेगा आपको, जैसे ही प्रॉफिट दिखेगा इसमें यू नीड टू एग्जिट. 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड लेकर यू कैन एग्जिट योर स्ट्रेटेजी. अगर 6,000 रुपए का रिस्क आ रहा है इन टोटल, तो आपको 12,000 रुपए अगर मिलते हैं तो जस्ट गेट आउट फ्रॉम द ट्रेड. 10,000 रुपए मिलते हैं तो भी जस्ट गेट आउट फ्रॉम द ट्रेड. सो व्हाट इज द कैपिटल रिक्वायरमेंट? इसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा अराउंड 20,000 का. सो विद 20,000 ऑप्शंस यू कैन बाय एटीएम कॉल एंड पुट. ये दोनों का आपको स्टॉप लॉस रखना है, दैट इज 40% ऑफ द प्रीमियम वैल्यू.
से 100 रुपीज में कॉल आप बाय कर रहे हो, 100 रुपीज में पुट आप बाय कर रहे हो, तो स्टॉप लॉस इसका आएगा 40%, दैट इज 40 रुपया दोनों का स्टॉप लॉस आएगा। दोनों में से कोई भी एक स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आप वो पोजीशन बाकी की होल्ड कर सकते हो, और जैसे ही वॉलेटिलिटी आएगी और प्रॉफिट में आपका पैसा आएगा, अच्छा खासा प्रॉफिट में आएगा, जस्ट गेट आउट फ्रॉम द ट्रेड। डू नॉट वेट कि बजट की स्पीच एंड होगी उसके बाद 10-15 मिनट वेट कर लेता हूं, नहीं। ड्यूरिंग द बजट के दिन, बजट की स्पीच के टाइम मार्केट वॉलेटाइल होगा, ऊपर नीचे होगा, उस टाइम पे एक डायरेक्शन पे एक फॉल आएगा, इधर इंक्रीज होगा मार्केट, उस टाइम पे ये पोजीशन को आपको एग्जिट कर देना है ड्यूरिंग द बजट स्पीच ओनली। ओके, बजट स्पीच है मैक्सिमम विद इन 5 मिनट्स, बिकॉज इसमें थीटा बहुत सारा बढ़ गया है, थीटा वैल्यू बढ़ गई है, टाइम वैल्यू बढ़ गई है वॉलेटिलिटी के हिसाब से, तो वॉलेटिलिटी धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगी जैसे बजट स्पीच खत्म होगी। So just exit from the position once the volatility comes. So this is strategy number 1 you can look for if you are an option buyer. Strategy number 2, if you are an option seller, you can look for the straddle right with the same ATM call for the 2nd Feb expiry, जो परसों की एक्सपायरी है, थर्सडे की एक्सपायरी है, वही एक्सपायरी को आप प्रीमियम को guys buyer जो है ऑप्शंस के, you can take the expiry of 23rd Feb, you can just take a screenshot of this, 23rd Feb की एक्सपायरी की बाय करना है, जो राइटर है उसको राइट करना है 2nd Feb की एक्सपायरी का, तो सेम एटीएम आपको देखना है, ये 9:30 या तो 11:20, ओके, सुबह आपका अगर ट्रेड चल रहा है तो अराउंड 11:20 के आसपास जस्ट लुक आफ्टर कि एटीएम कॉल या पुट क्या चल रहा है। जो भी एटीएम कॉल है, एट द मनी कॉल है, उसको आप राइट कर सकते हो विद 30% हाई प्रीमियम से 100 रुपए पे आप राइट कर रहे हो तो 30% ऊपर यानी 130 रुपए उसका स्टॉप लॉस हो जाएगा इन निफ्टी। बैंक निफ्टी है तो थोड़ा ज्यादा आएगा, इन निफ्टी अराउंड 30% आपका स्टॉप लॉस आएगा, बैंक निफ्टी में यू कैन पुट इट अबाउट 40%। ओके, सो 100 रुपया है तो 40 रुपया बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस आएगा, 100 रुपया है तो 30 रुपया निफ्टी में स्टॉप लॉस आएगा। सो इसमें रिस्क कितना होगा, 30% का आपका स्टॉप लॉस है, मतलब 30 रुपए का, फॉर एग्जांपल 100 रुपए पे 30 रुपए का स्टॉप लॉस है, और निफ्टी का लॉट साइज है 50, सो अराउंड मैक्सिमम रिस्क इज अराउंड 3000 रुपीज इन दिस। सो ये स्ट्रेटेजी आप एक लॉट में या मल्टीपल ऑफ 1 लॉट यू कैन एग्जीक्यूट दिस with the straddle with the stop loss of 30% of the premium value. So 30% उसका इंक्रीज कर देना और वो स्टॉप लॉस आपका लगा देना, और जैसे एक हिट होता है दूसरा आप वेट कर सकते हो। ये स्ट्रेटेजी आप बजट स्पीच के बाद भी लिटिल होल्ड कर सकते हो, बिकॉज धीरे धीरे टाइम वैल्यू कम होगा, वॉलेटिलिटी कम होगी तो प्रीमियम गिरने लगेंगे, फास्टली शार्पली इट विल फेल डाउन। सो यू कैन लुक आफ्टर फॉर द स्ट्रेडल राइट टुमारो। थर्ड स्ट्रेटेजी यू कैन डू इट विद द स्ट्रैंगल, जो हम स्ट्रैंगल की स्ट्रेटेजी बोलते हैं, जिसमें 300 पॉइंट ऊपर या नीचे के कॉल एंड पुट करंट वीक के एक्सपायरी दैट इज 2nd Feb की एक्सपायरी का आप राइट कर सकते हो। एट द सेम टाइम 200 पॉइंट ऊपर का और नीचे का आप कॉल और पुट खरीदना है, इसमें 2 लॉट आपको यहां पे बेचना है, तो यहां पे आपको खरीदना भी है, एक बोलते हैं ना प्रोटेक्शन लगाना है, तो प्रोटेक्शन में आप 200 पॉइंट ऊपर का कॉल, 200 पॉइंट ऊपर का नीचे का पुट, ये आप खरीद सकते हो। दैट मीन्स अगर आप 9:30 बजे देख रहे हो, दिस स्ट्रेटेजी शुड बी एग्जीक्यूटेड अराउंड 9:30 AM। 9:30 बजे आप मार्केट देख रहे हो, जहां पे भी मार्केट है वहां से 300 पॉइंट ऊपर का कॉल बेचना, 300 पॉइंट नीचे का पुट बेचना फॉर द करंट एक्सपायरी 2nd Feb, और 200 पॉइंट ऊपर का कॉल खरीदना फॉर द 29 Feb एक्सपायरी, नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी, और 200 पॉइंट नीचे का पुट खरीदना फॉर द सेम 9 Feb एक्सपायरी। सो दिस कैन हेज योर पोजीशन, और मार्केट में बड़ा मूवमेंट आएगा, इससे आप बच पाओगे। सो इट इज लाइक दैट, एंड ड्यूरिंग द डे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखता है तो यू कैन बुक योर स्ट्रेटेजी ओवर हियर। एंड विद द स्टॉप लॉस, आपको स्टॉप लॉस कहां रखना है कि जैसे ही डबल हो जाएगा प्रीमियम, समझो 100 रुपए पे शॉर्ट करते हो तो 100 आपने कॉल शॉर्ट किया, पुट आपने 120 पे शॉर्ट किया है, तो इन टोटल कितना हुआ, 220 रुपीज हुआ, तो आपका स्टॉप लॉस होगा 220 प्लस 10%, यहाँ पे 10% ऊपर और ऐड कर देना, दैट इज 242 का आपका स्टॉप लॉस होगा, 2।
ओके अगर एक हिट हो जाता है तो दूसरा होल्ड करना विद द स्टॉप लॉस, आप कॉस्ट पे ट्रेड करेंगे, और अगर दूसरा हिट हो जाता है जस्ट गेट आउट फ्रॉम द ऑफ, एग्जिट करके जाना है, लॉन्ग वाला होल्ड नहीं करना. So this is the strategy, you can use it tomorrow in the option segment. Okay, so this is the thing. Let's see quickly जो yesterday का report देख लेते हैं. I have given you about 5 trades yesterday. Out of that only 1 trade has been executed, that is Carborundum Uni, जो लॉस में गया, which has been hit the stop loss. तो यहाँ पे if you can just check that trade log, यहाँ पे 2002 रुपए का मुझे लॉस हो गया, जो 2000 रुपए का हम नॉर्मल रिस्क लेते हैं. ऑन अ 15 मिनट कैंडल लॉन्ग ट्रेंड हुआ, इमीडिएटली सेकंड कैंडल पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया. सो आई वाज आउट. सो ओवरऑल ऑन एंड ऑल लास्ट डे ऑफ द मंथ है, 31 जैन खत्म हो गया. वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम 9 जैन से अब तक ऑन अ कैपिटल ऑफ 3 लाख वी कैन एबल टू मेक अबाउट 73,599. You can check this videos for the proof. You can go to the YouTube and search for stocks box. तो यहाँ पे स्टॉक्स बॉक्स सर्च करोगे तो आपको मेरे यहाँ सारे वीडियोस मिल जाएंगे, पूरी वीडियो की सीरीज मिल जाएगी. ऑल एंड ऑल आप यहाँ पे ये ट्रेड लॉग के साथ उसको कंपेयर कर सकते हो. ऑल द ट्रेड्स विच इज बीन गिवन इन दिस टाइप ऑफ सेशन ऑन द वीडियो विच आई एम सेंडिंग टू यू एवरी बिटवीन अपलोडिंग एवरी 6 to 7, 6 से 7 के बीच में ये अपलोड हो जाता है वीडियो. ड्यूरिंग दैट टाइम वॉट एवर ट्रेड्स आई हैव गिवन टू यू फॉर द नेक्स्ट डे which it has been logged here. Okay, यहाँ पे हम लिखते हैं रोज एक्सेल में, और हम क्या करते हैं 15 मिनट की कैंडल की स्ट्रैटेजी यूज करते हैं. ये 15 मिनट की कैंडल की स्ट्रैटेजी में अगर पहला कैंडल ग्रीन बनता है और अगर हमने लॉन्ग एक्सपेक्ट किया है तो लॉन्ग करते हैं, अगर पहला कैंडल रेड बनता है और हमने डायरेक्शन शॉर्ट एक्सपेक्ट किया है तो शॉर्ट करते हैं. बिकॉज माई फर्म बिलीव ट्रेंड इज योर फ्रेंड. अगर ट्रेंड सीखना देखना आ गया तो ऑटोमेटिकली आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली उस साइड में आपको ट्रेड लेना है. तो ट्रेंड इज माय फ्रेंड. ट्रेंड अगर लॉन्ग है तो मैं इंट्राडे में लॉन्ग ही करूंगा, ट्रेंड अगर शॉर्ट है तो इंट्राडे में शॉर्ट ही करूंगा. जस्ट टू टेक अ कंफर्मेशन आई एम टेकिंग अ 15 मिनट कैंडल. ये पहला 15 मिनट अगर लॉन्ग ट्रेंड है तो ग्रीन बनेगा, पहला 15 मिनट का कैंडल अगर शॉर्ट ट्रेंड है तो रेड बनेगा. सिंपल. ओके, सो आउट ऑफ दिस कार्बोरेंडम यूनि में आज एंट्री बनी थी एक्सेप्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी. आई टू जस्ट शो यू, you can see here why it is important. 15 मिनट कैंडल, तो 15 मिनट की कैंडल देखते हैं. आज हमारा डायरेक्शन क्या था, वी आर एक्सपेक्टिंग लॉन्ग, बट पहला कैंडल बन गया नेगेटिव, सो वी हैवंट गॉट द एंट्री. जो नीचे गया उसके बाद और मार्केट साइडवेज हो गया. तो सिंपल, नीचे भी नहीं गया ऊपर भी नहीं गया, सिंपल इज दैट. बैंक निफ्टी में देखते हैं तो सेम थिंग, इंडेक्स फ्यूचर देखना है, पहला कैंडल नेगेटिव, अगर लॉन्ग करते तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर गया. ड्यूरिंग द मार्केट डेज या मार्केट के मूवमेंट में अगर एंट्री बनता है दैट इज फाइन, नो प्रॉब्लम ऑन दैट. कि मार्केट के डायरेक्शन में जो एंट्री बनी, जो इंडिकेटर कंफर्म किया, तो अकॉर्डिंगली लाइव मार्केट में डिसाइड करते हैं, दैट इज द डिफरेंट थिंग. बट पोस्ट मार्केट में वी एनालिज फॉर द नेक्स्ट डे मॉर्निंग क्या करना है. सो दिस इज द थिंग यू नीड टू डू. यू नीड टू चेक द 15 मिनट कैंडल. Okay, so only one trade has been executed yesterday, which is in stop loss got triggered. So all in all, you can check over here. We have earned about in the month of January, since 9th of January, we have earned about 24.5%. आप बोलोगे इसमें तो ब्रोकरेज कितना होगा, टैक्सेस कितना होगा. So in our stocks box, we have an unlimited plan for you. Okay, so that will be a subscription plan. Under that, by paying just 499 rupees, you can subscribe for the unlimited brokerage till turnover of 1 CR. 1 CR तक आपको सिर्फ 500 रुपए ही ब्रोकरेज पे करना है. So this is damn cheap, you can say. Okay, बहुत आपको सस्ता मिलेगा. So overall अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लॉग का वॉल्यूम देख लेता हूं तो यहाँ पे we just mention this. यहाँ पे वॉल्यूम कितना होता है, कैपिटल कितना यूज होता है. ओके, मार्जिन आई एम नॉट कैलकुलेटिंग मार्जिन, कैपिटल कितना यूज हुआ. Till now on a capital of 3 lakh, okay, we have used about 1.18 CR. तो आप 499 का प्लान लेते हैं तो आपको सिर्फ 500 रुपया इसमें ब्रोकरेज जाता है. और अगर मैं टैक्सेस कैलकुलेट करता हूं, so I'll just calculate the taxes as well. 70 कितना था, 75,000, so sorry, yeah, 73,599. okay, so overall turnover कितना था, 1.18 CR, so 1.18 lakh. ठीक है, 1 करोड़ 18 लाख का टर्नओवर हुआ. तो 1 करोड़ 18 लाख पे
यू जस्ट टैक्सेस अगर कैलकुलेट करते हैं तो 0.03% इंट्राडे में जाएगा, बिकॉज दिस इज ऑल इंट्राडे ट्रेड। तो मैक्सिमम आपका यहाँ पे 0.03% किया तो 3,540 इज द टैक्सेस अमाउंट। तो दिस इज द एग्जिट अमाउंट, प्लस आपको 500 रुपया आपका लाइक यू कैन से सब्सक्रिप्शन में गया, ब्रोकरेज सब्सक्रिप्शन में, और यहाँ पे रिसर्च की एडवाइस आपको मिलती है 499। वी चार्ज यू द ब्रोकरेज जीरो, वी आर जस्ट चार्जिंग यू फॉर द रिसर्च। जो हमारी रिसर्च टीम आपको ट्रेड्स देती है ड्यूरिंग द लाइव मार्केट, वी आर चार्जिंग यू फॉर दैट। वी आर अ वैल्यू ब्रोकर, आपको टन्स ऑफ ट्रेड्स कभी नहीं मिलेंगे, गिने चुने अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे जो आप मार्केट में यूज कर सकते हो। तो मैक्सिमम इसमें खर्चा कितना आया मेरा खर्चा अराउंड 4,440। अगर मैं 1 करोड़ का टर्नओवर पार कर देता हूं और मैं सब्सक्राइब रिन्यू करता हूं तो अगेन अगर मैं 500 रुपया के पे करता हूं तो भी 4540 ही मेरा ओवरऑल टोटल खर्चा है। सो आउट ऑफ दिस जो मेरा 73,000 का प्रॉफिट था, उसमें से मैं अगर यहाँ पे इज इक्वल टू 73,599 माइनस 4,500 का खर्चा हुआ, हाउ मच? 69,000 आई कैन एबल टू अर्न इट, 69,099। और यही चीज अगर 30 लाख का कैपिटल होता तो यहां पे मेरा सब्सक्रिप्शन उस हिसाब से ट्रेडर्स प्लान ऑल्सो है, तो उस हिसाब से इसका 10 टाइम आप कर लो तो भी 6,90,000 आई कैन एबल टू अर्न इट थ्रू दिस। So this is the view, guys. Overall, we have executed about in like this 20 days, almost 20 days. 20 days में there are about 15 or 16 trading days. उसमें से maximum trade we have executed is 34 only. सिर्फ 34 ट्रेड में with the index, stocks and everything, सिर्फ 34 ट्रेड में we can able to earn about 23% net profit. Okay, so this is the beauty of intraday trading. Intraday trading आप जितना simple रखोगे, it will help you. So join Stocksbox, join the Mentor Box, subscribe to this channel. We are coming up with the Mentor Box in the month of February. So on and all, we are coming up with the live trading. We will coming up with the full-fledged courses as well. So do subscribe to our YouTube channel and visit www.stocksbox.in for the regular update on our video. So overall, on and all, this is the thing. Now stocks for tomorrow. Which stocks you can trade tomorrow? You can trade Nifty, Bank Nifty long. सुबह में मैंने बताया, plus the strategy part which I have explained to you. The strategy which you can execute, and 4 stocks during the intraday you can do it. One is M&M, breakout with volume, Kirloskar Ferro. Let's quickly see Mahindra and Mahindra. ओके, महिंद्रा एंड महिंद्रा अगर मैं डेली चार्ट देखता हूं तो ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ है यहाँ पे। ओके, एंड इट इज गिविंग यू अ ब्रेकआउट विद द वॉल्यूम। सो पहला 15 मिनट का कैंडल फॉर द न्यू पीपल, अगर पहला 15 मिनट का कैंडल कल पॉजिटिव क्लोज होता है लाइक दिस, ऐसा पॉजिटिव क्लोज होगा तो गो लॉन्ग विद द लो स्टॉप लॉस। ओके, जो भी लो बनेगा उसका स्टॉप लॉस के साथ यू कैन गो लॉन्ग, और आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं विद 5 मिनट चार्ट। यहां पे आपको एक सिंपल सा इंडिकेटर ऐड करना है अंडर ट्रेडिंग व्यू, PSAR, पैराबोलिक सार। जैसे जैसे ग्रीन डॉट और ग्रीन कैंडल बनती जाती है, हायर हाई कैंडल बनती है, तो PSAR के डॉट के साथ आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। और ड्यूरिंग द एंड जो भी आपका पोजीशन होगा, अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है तो जस्ट एग्जिट योर पोजीशन एट 350। ओके, सो ये वीडियो थोड़ा लंबा है आज का, सो वी नीड टू कवर लॉट ऑफ थिंग। देन स्टॉक नंबर 2, किर्लोस्कर फेरोस। ओके, यहाँ पे किर्लोस्कर फेरोस, अगर इसका भी मैं डेली चार्ट देखता हूं, सो इट इज ऑल्सो गिविंग यू अ ब्रेकआउट विद द वॉल्यूम, सो यू कैन लुक फॉर द लॉन्ग ऑन 15 मिनट चार्ट विद द ग्रीन कैंडल। थर्ड स्टॉक ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन, लोअर लोस फार्मा स्टॉक है, लोअर लो बनाते जा रहा है, इट इज हेडिंग टूवर्ड्स अराउंड दिस लेवल। यहाँ पे अगर आप मैं डेली चार्ट खोलता हूं तो दिस इज 1 डे चार्ट। ओके, तो यहां कहीं इसका टारगेट है। ओके, यहां कहीं जोन बनेगा अराउंड दिस लेवल, ये वाला कहीं अराउंड 1232 के आसपास से 1150, दिस इज योर टारगेट। So look after for the short opportunity tomorrow on GlaxoSmithKline with first negative candle. Why negative? Because more number of seller we can expect in that. Okay. Then last stock
स्टॉक नंबर 4 जाइडस वेलनेस, ये भी शॉर्ट है। यहाँ पे यू कैन सी वॉल्यूम के साथ गिर रहा है। ओके, इवन ओपन एंड हाई इज ऑल्सो सेम फॉर टुडे, सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ शॉर्ट ऑन दिस विद द टारगेट अराउंड हियर, ये वाले टारगेट 1319 से 1338. This is your target. So look after for the short opportunity on Zydus Wellness. So this 4 stocks you can look for short in the morning before 11. You can look for the long opportunity on Nifty and Bank Nifty. Overall budget is expected. I am expecting over here कि budget अगर यहाँ से pull back आ रहा है, since Bank Nifty में pull back है, Nifty में pull back है, so I am expecting a target on Nifty around 17,800 के आसपास आना चाहिए बजट की क्लोजिंग। सो बजट का क्लोजिंग है, यू कैन राइट इट डाउन व्हाट योर एक्सपेक्टेशन कि कल बजट के दिन क्या क्लोजिंग होगा। यू कैन राइट इट डाउन ऑन द कमेंट बॉक्स, यू कैन कमेंट योर एक्सपेक्टेशन कि बजट अराउंड कौन से फिगर के आसपास क्लोज होगा। सो आई एम एक्सपेक्टिंग ऑन द बजट, माई एक्सपेक्टेशन इज लाइक दैट कि मार्केट नीचे से पुल बैक आ रहा है। सो ओवरऑल आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड 17,700 to 17,800. I'll bet on 17,800 के आसपास मार्केट क्लोज होना चाहिए। So around this level, I'm expecting a closing on the budget. You never know. We have a strategy to execute, but overall, I'm expecting on the positive side. अगर बजट में ओवरऑल हिस्ट्री देखते हो तो लास्ट 10 इयर्स में बजट में 6 बार मार्केट गिरा है, 4 बार ही मार्केट ऊपर है। सो ओवरऑल आई एम एक्सपेक्टिंग पॉजिटिव बट नॉट बिगर वन, छोटा 100-200 पॉइंट का आई एम एक्सपेक्टिंग अ पॉजिटिव ऑन द बजट। So that's all from my side today. So for more such ideas on stock market, make sure you subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the regular updates.